Hello and welcome to Legacy IAS Academy. So in today's video, we are going to discuss about a space-based missiles defense system that US has proposed to build. ठीक है? This they have named as the Golden Dome, and they are saying that because this is very unsafe world, so this is how we are going to protect our people. ठीक है? So here in this video, we are going to understand about some of the details that has been so far declared by the American president कि what are the components की ये कब तक खत्म हो पाएगा, by what time will the project be ready, what is the estimated cost of this project and what are the overall components. Now so far it has not been declared by which company this space based missile defense system shall be created. ठीक है, तो अभी तक जो डिटेल्स हमें हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं, as of now we will be discussing about those details, but as and when things unveil we will get to know more information about the Golden Dome. ठीक है, so name of this project is the Golden Dome, and as estimated that the initial cost estimation of this project is approximately $175 billion. ये estimated cost है. Whatever be the statements that are coming from various companies या industries who are involved in space based missile defense system या missile defense system की manufacturing में जो भी companies involved है ना, उनका कहना कुछ और ही है इस number से related, but as of now the president has clarified कि this will be a $175 billion की project रहेगी. ठीक है, so as discussed कि this will be a space based missile defense system. So इसके लिए components के लिए whatever be the required components ये सारे space में भी present रहेंगे. Apart from obviously the interceptor missiles जो on ground के पर available रहेंगे, we will also be making use of some other components from space. ठीक है, so what is the estimated time that the president has declared कि ये उनकी इसी term में within 3 years this project is going to get completed. ठीक है, within the same term of Donald Trump he has stated कि this is a very ambitious target. Again the timelines that we have from various industries who are involved in manufacturing उनका कहना अलग ही है कुछ, but Donald Trump का कहना है कि this project will be ready within 3 years. ठीक है, before the end of this term. So talking about the components of this Golden Dome as we discussed, क्योंकि ये space based missile defense system है, तो ये किसी भी तरीके के मिसाइल से प्रोटेक्ट करेगा किसको, यूएस को. What is the most common expected threats? Where are the most common expected threats for USA? It will be either Russia or China. So Russia और China से अपने air spaces को completely protect कर लेना, that is the final aim of the Golden Dome. ठीक है, most commonly from these two threats. अगर ये दोनों से बचा लेंगे तो फिर आसपास के बाकी सारे कंट्री से बचा ही लेंगे. ठीक है, so talking about the Golden Dome will consist of satellites. ये किस तरीके के satellites होंगे? One will be a set of interceptor satellites as well as the other one, another set of array of satellites known as the detector satellites. So जो detector satellites होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे कि देयर इज अ मिसाइल दैट हैज बीन लॉन्च्ड. अब ये मिसाइल किसी भी तरीके का मिसाइल हो सकता है. इट कैन बी अ हाइपरसोनिक मिसाइल, इट कैन बी अ क्रूज मिसाइल, इट कैन बी अ बैलिस्टिक मिसाइल, किसी भी तरीके का मिसाइल हो सकता है और ड्रोन हो सकता है. So if the detector satellite will detect that a missile has been launched, ठीक है, और detector और interceptor satellites will communicate with each other, और जो interceptor satellite होगा वो जो ground based missile systems होंगे उनको बोलेगा कि इसे intercept कर लो. ठीक है, so space में ही we will have this kind of interception and detection, जिसे कि जैसे ही ये मिसाइल लॉन्च होगा इसे लॉन्च होते ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और अदरवाइज बिफोर इट एंटर्स इनटू द एयर स्पेस ऑफ यूएसए इट विल बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, सो इट विल कंसिस्ट ऑफ डिटेक्टर सैटेलाइट्स, इंटरसेप्टर सैटेलाइट्स एंड ऑब्वियसली द ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम जो कि इंटरसेप्शन का काम करेगी. ठीक है, so talking about the missile defense system, ये तो था, this is a proposed project and that is what is the details that have come from the President of United States of America. Now we will get into the controversies कि अलग-अलग industry से अलग-अलग statements आ रहे हैं about the cost of the project, the timeline of the project. But here we will briefly discuss about some of the missile systems that world over other countries have. ठीक है, तो दूसरी countries के पास और क्या-क्या missile defense system है.
we have one very important one, that is S-400. S-400 belongs to Russia, as the name suggests. 400 kilometers इनका range होगा. When we say range approximately 400 kilometers, usually ये long range missile defense system हो जाती है, ठीक है. So this will be a long range missile defense system, altitude up to 56 kilometers. 56 kilometers और 400 kilometers range में कोई भी satellite, कोई भी missile जो आएगा, that will be destroyed by S-400, ठीक है. S-400 consists of advanced radar system. So इसमें ना आगे में एक radar लगा रहता है, वो radar होता है जो detect करता है. This radar system will detect that there is an incoming missile, ठीक है. अब वो अगेन किसी भी तरीके का मिसाइल हो सकता है, बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक, किसी भी तरीके का मिसाइल हो सकता है, जिसे ये डिटेक्ट करेगा. और एक बार डिटेक्ट करेगा तो वो उसके अंदर एक S-400 के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम भी लगा रहता है. दैट कंप्यूटर सिस्टम विल देन डायरेक्ट कि मिसाइल अब आप लॉन्च हो जाओ एंड गो एंड हिट दैट मिसाइल, ठीक है. सो देयर विल बी एन इंटरसेप्टर मिसाइल विच विल बी लॉन्च एंड दे विल गो एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी मिसाइल, ठीक है. इसमें नॉट वन सिंगल मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं. जैसे हमारे पास एक मिसाइल सिस्टम है पिनाका, ठीक है, दिस इज इंडिजिनस. वैसे ही S-400 में जो मिसाइल डिप्लॉयड है, जो इंटरसेप्टर की तरह काम करेगा ना, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल मिसाइल सिस्टम्स, ठीक है. दिस इज वन मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया. Talking about the next one, that is David Sling. David Sling जो है ये इजराइल और यूएस के कोलैबोरेशन से बना है. Although this is currently deployed in Israel, but this is made up of collaboration of Israel and USA, ठीक है. तो इसका रेंज जान लेते हैं. दिस इज मीडियम टू लॉन्ग रेंज. तो लॉन्ग रेंज कहने का मतलब अप टू 300 किलोमीटर के सरफेस एरिया में, और ऑल्टीट्यूड कितना, ऑल्टीट्यूड अप टू 15 किलोमीटर्स का जो भी ऑल्टीट्यूड में इस स्पेस में कोई भी मिसाइल अगर वो आएगा तो उसे इंटरसेप्ट कर लेगा दिस डेविड स्लिंग, ठीक है. डेविड स्लिंग वाज आल्सो यूज्ड बाय इजराइल अगेंस्ट द अटैक्स दैट वर कमिंग फ्रॉम द हमास गाजा रीजन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द आयरन डोम. Talking about the next one, जो कि यूएस का अपना है, indigenously built, currently deployed in USA itself and some of the allies of USA. For example, US has gifted it to South Korea as well. तो थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये यूएस का अपना है. इन टर्म्स ऑफ इट्स रेंज इट इज 200 किलोमीटर्स और इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इट इज 150 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड. 150 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड और 200 किलोमीटर के रेंज में कोई भी मिसाइल सिस्टम जो यूएस एयर स्पेसेस में एंटर करेगा उसे इसका इंटरसेप्टर मिसाइल जाकर के डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है. सो दैट इज द थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम. नाउ टॉकिंग अबाउट चाइना. चाइना के भी पास अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, दैट इज जिसका रेंज इज 125 किलोमीटर्स. हॉरिजॉन्टली इतने बड़े एरिया को ये प्रोटेक्ट कर सकता है और ऑल्टीट्यूड 27 किलोमीटर्स. सो 27 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में अगर कोई भी जो 125 किलोमीटर रेंज के अंदर से अगर मिसाइल लॉन्च, मतलब ये अगर मान लेते हैं कि ये मिसाइल एक जगह डिप्लॉयड है तो अप्रोक्सीमेटली 125 किलोमीटर के रेंज पर तक का एरिया ये प्रोटेक्ट कर सकता है. टू व्हाट ऑल्टीट्यूड, टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ 27 किलोमीटर्स, ठीक है. दिस इज HQ-9 ऑफ चाइना. नाउ कमिंग टू आकाश, जो कि अभी हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के वॉर में यूज किया था अंडर ऑपरेशन सिंदूर. दिस वाज यूज्ड, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास हैं. वी डू हैव S-400 फ्रॉम रशिया, वी डू हैव बरक मिसाइल सिस्टम्स फ्रॉम रशिया, वी डू हैव MRACM, ठीक है. मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी हैं हमारे पास. तो we do have Spider capabilities against surface to air missile systems है. But talking about आकाश जो कि हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के वॉर में करंटली यूज किया, उसका रेंज इज 25 किलोमीटर्स. सो अगर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक जगह डिप्लॉयड है तो 25 किलोमीटर के रेंज में कोई मिसाइल एंटर नहीं करेगा. टू व्हाट ऑल्टीट्यूड, टू द ऑल्टीट्यूड ऑफ 100 मीटर्स टू 18 किलोमीटर्स. 100 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर्स के बीच में कोई भी मिसाइल इस एरिया में एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है. मिसाइल्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करेगा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम विच इज आकाश. But this, as we discussed, this is obviously not the only air defense system that we have. We do have आकाश जो है वो इंडो एटमॉस्फेरिक. So within atmosphere अगर कोई किसी भी तरीके का मिसाइल लॉन्च होता है तो आकाश will protect us. But we do have an exo atmospheric missile defense system also. Exo atmospheric कहने का मतलब जो एटमॉस्फेयर के बाहर से मिसाइल इंडिया में एंटर कर रहा है, यूजुअली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं. For that also we have an missile defense system by the name Prithvi Air Defense System. And apart from that, of course, we have S-400 and Barak missile defense system also.
ठीक है, तो ये तो था जस्ट समरी। इसके अलावा भी ऑफ कोर्स वी डू हैव अ वेराइटी ऑफ, फॉर एग्जांपल आयरन डोम इटसेल्फ वी डिड नॉट डिस्कस, बट आयरन डोम का रिलेटिवली रेंज कम होता है, दिस इज मीडियम रेंज टू शॉर्ट रेंज, ठीक है। सो वी हैव अ वेराइटी ऑफ, वर्ल्ड ओवर डिफरेंट कंट्रीज हैव अ वेराइटी ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बट जो गोल्डन डोम है ना, गोल्डन डोम विच हैज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल, ये जो गोल्डन डोम है दिस इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि इसके लिए इंटरसेप्शंस और डिटेक्शन स्पेस में हो रहे हैं, थ्रू सैटेलाइट्स हो रहा है, तो इसका मतलब दिस विल बी मच मोर सिक्योर। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा जो डिटेक्शन सिस्टम होता है वो डिटेक्शन सिस्टम ग्राउंड बेस्ड होता है, रडार जो हम लोग प्लेस करते हैं दिस इज ऑन ग्राउंड, तो इसका मतलब वो आपके एयर स्पेस में एंटर कर चुका है, द मिसाइल हैज एंटर्ड इनटू योर एयर स्पेस एंड देन आप इंटरसेप्टर लॉन्च करके उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सैटेलाइट बेस्ड डिटेक्शन ना, तो बिफोर इट हैज एंटर्ड इनटू योर एयर स्पेस, वंस इट वाज लॉन्च्ड, उसी समय इमीडिएटली इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। दैट इज वाई गोल्डन डोम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट, एटलीस्ट एक्सपेक्टेड टू बी, अगर इस प्रोजेक्ट को फ्रुक्टिफाई कर लिया गया तो दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट securing missile defense system so far the world has known, ठीक है। But the controversies, there are certain controversies as we discussed कि Donald Trump is claiming that this project will be completed within 3 years before the end of his term, but that is not expected to be true. Industries, various industries including SpaceX, including Lockheed Martin, बहुत सारी companies जो इसमें involved होती हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं, दे आर स्टेटिंग कि ये मिनिमल ऑफ 10 years, दिस प्रोजेक्ट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू टेक अ मिनिमल ऑफ 10 years एंड अप्रोक्सीमेटली 20 years. सो 10 से 20 साल लग जाएगा इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने में, क्योंकि यू आर आस्किंग अस टू डिप्लॉय सैटेलाइट्स, लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, इंटरसेप्टर सैटेलाइट्स, डिटेक्टर सैटेलाइट्स, तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हमें काफी टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट. So Donald Trump has claimed कि this project will be costing them approximately $175 billion. But what these industries are stating कि ये $175 billion में नहीं complete हो पाएगा. This will take approximately $500 billion. But this is also true कि these industries have stated, including SpaceX, including Lockheed Martin, they have stated कि ये project possible तो है. This is possible. ठीक है. Another controversy is the opposition party in USA, they are stating that SpaceX, which is one of the very well-known names in creation of space-based satellites या missile systems को बनाने के लिए SpaceX एक बहुत ही popular name है. And because we know this कि SpaceX के founder, he is also involved in the current government of USA, so SpaceX is expected to get disproportionate benefit out of all of this. ठीक है. One more thing is the time taken to complete the project. This time taken, as we discussed, this is approximately going to take 10 years. And one more hurdle is the approval from the US Congress. Approval from the US Congress, we do not know. अभी तक तो ये approval आया नहीं है. Parliamentary approval has to be granted because a huge amount of money is being allocated. ये जो $500 billion है, this is more than the economy of Pakistan also. ठीक है. सो इतना बड़ा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, उनकी कांग्रेस को अप्रूव करना पड़ेगा, which we do not know as of now will it be possible or not. ठीक है. So that was all about the Golden Dome. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.